whose coordinates of its vertices are coordinates of its vertices are ठीक है, find the area of the triangle whose coordinates of its vertices are 2 comma minus of 3 1 comma 2 and 3 comma 4 respectively। बताइए एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जस्ट डू इट फास्ट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसमें, तो यही सेम फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस। अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटल मीन्स figure which is having 4 sides, okay, this you can say that sir abcd is a quadrilateral over here। abcd is a quadrilateral, a have x1 y1, ठीक है ना, b have its vertices that is x2 y2, c has its vertices that is x3 y3 over here, right ना, and d has its vertices that is x4 y4 over here, ठीक है। तो x4 y4, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल क्या हो जाएगा, जस्ट सी हियर दैट area of a quadrilateral is area of a quadrilateral is equal to हाफ इंटू, ठीक है ना, हाफ इंटू क्या हो जाएगा x1 y1, ठीक है, तो हाफ इंटू x1 y1, ठीक है, x2 y2 ओवर हियर, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, x2 y2, ठीक है ना, x3 y3 ओवर हियर, राइट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस प्लस x3 y3, राइट, उसके बाद x4 y4 ओवर हियर, राइट ना, प्लस x4 y4, राइट, और ये क्या हो जाएगा x1 y1 ओवर हियर। दिस इज द पॉइंट, दिस इज हाफ ऑफ दिस x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। नेक्स्ट इज this is the point that you can say that x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 and ठीक है ना, this is x1 y1, so this is something which is the area of quadrilateral, right। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, find the area of the triangle whose coordinate of its vertices are 1 2 minus of 3 1 2 and 3 4 respectively। इसके vertices क्या क्या होंगे, 6 आंसर आ रहा है, तो इसका एरिया कितना आ रहा है 6। आ गया सब लोगों का, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, काफी इजी है, कर ही लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया इज समथिंग विच इज हाफ ऑफ दिस इज 2 माइनस 3 1, ठीक है ना, 1 2 1 ओवर हियर, 3 4 एंड 1 ओवर हियर, ठीक है ना। दिस इज हाफ ऑफ 2 माइनस 3 1 1 2 1 एंड 3 4 1 ओवर हियर। दिस इज द पॉइंट, जस्ट डू इट फास्ट, कीजिए जल्दी से, ठीक है, राइट ना, ओके ऑल राइट, जल्दी कीजिए। लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, just a minute, should I wait for your like turn, right at time, next turn timing। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, just write down the question, write down the question which is based on this। 1 by 2, this is x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 x4 y4 and x1 y1, okay, these all are the like area of quadrilateral, you know, a x1 y1 and b x2 y2, c is x3 y3 and d is something which is x4 y4, okay, this is the area of quadrilateral that you need to write। This is very easy to for all of you or not, just tell me fast, easy na, all right। Just write on the question which is based on this. The quadrilateral formed by the vertices
sorry, find the area of the quadrilateral formed by the vertices, find the area of the quadrilateral formed by the vertices -2, ठीक है ना, -2, माइनस ऑफ 1, ए है आपका यहाँ पे, बी है, फाउंड बाय द वर्टिसेस, सी इज हियर दैट इज 3, माइनस ऑफ 1 and D is something which is 3, 2. So find the area of the quadrilateral formed by the vertices minus of 2, 2, minus of 2, minus of 1, 3, minus of 1 and 3, 2. ठीक है, ये आपको बताना है, find the area of the quadrilateral formed by these vertices. ठीक है, तो देखो इसमें दो चीजें आप कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। या तो आप ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकाल लें, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि कई बच्चों को क्या होता है कि मान लो एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल का फॉर्मूला आप भूल गए, ठीक है, तो इसमें जो है ना इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल का फॉर्मूला आपको पता है तो ये तो आप कर ही सकते हैं, दिस थिंग यू कैन डू दिस, ओके ना। नहीं लंबा नहीं आएगा, इजी है, ठीक है ना। x1 नहीं कोई इशू नहीं है, इजी है। x1 को y2, तो x1 को y2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही तो करना ही है, दिस इज x1 y2 माइनस ऑफ x2 y1, ये हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही होगा ये। उसी तरह से इसको भी सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे एज इट इज, you can say that this you will write that x2 y3 minus of y2 x3 over here. Similarly you can write down this, similarly you can write down this over here also, okay, the fourth and fifth also as well, right? So I'm saying to write down these things, okay. So a minus of 2, 2 and b minus of 2, minus of 1, c is 3, minus of 1 over here, right? This is the point, and d is 3, 2. Okay, any doubt in this? If you have any doubt in this, just tell me fast, right? So c3 of 3, minus of 1 and d is something which is 3, 2 over here, okay. अब इसमें लिखोगे, समझोगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका, तो एरिया क्या हो जाएगा, जस्ट टेल मी। तो एरिया इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एरिया आपका ए बी सी डी का उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, राइट? कर सकते हैं आप लोग एरिया, इट्स ओके। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें? 15 स्क्वायर यूनिट्स ओवर हियर, दिस इज योर एरिया ओवर हियर, राइट? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है ना? यस, जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट। आ गया 15 सब लोगों का, ठीक है। देखो ये आपका पहला मेथड हो गया, ठीक है ना, हाफ इसको कर दिए। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? गोविंद जस्ट टेल मी। एसी और बीडी को लेंगे, तो एसी और बीडी को लेंगे, राइट? तो एसी और बीडी को लेंगे इसमें, तो आप देखेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि जो है ना आप ए बी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो यू हैव टू फाइंड आउट ए बी इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस ऑफ 2 मींस 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 2 माइनस ऑफ -1, दिस इज 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इफ दिस इज 3 ओवर हियर। BC is what? BC is coming square root of 3 minus of -2, this is 5 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ -1, दिस इज 0 का स्क्वायर ओवर हियर, तो दिस इज 5, ठीक है ना। CD क्या हो जाएगा, दिस इज CD is something which is 3 minus of 3, 0 का स्क्वायर, राइट, प्लस 2 minus of -1, this is 3 का होल स्क्वायर, that is 3 over here, राइट ना। अब उसके बाद देखोगे AD देखो, AD is what? AD is something which is square root of 3 minus of -2, that is 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर over here, तो this is 5 का स्क्वायर is 5। देखोगे 3 5 3 5, तो ये क्या हो गया, एक तरह से रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगल हो गया, तो एरिया इज समथिंग विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 into 5 सर, दैट इज समथिंग 15। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दिस इज योर सेकंड मेथड आल्सो एज वेल,
दिस इज योर सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सेकंड मेथड आपका ये हो गया, राइट? समझ में आ गया? तो सेकंड मेथड आप साइड्स फाइंड आउट करके देखेंगे कि ये रेक्टेंगल है। कैसे पता चला? इसलिए कि आपको फिर एसी भी निकालना होगा, ठीक है ना, एसी और बीडी। तो एसी निकालेंगे और बीडी दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखो ध्यान से आ रहे हैं, एसी और बीडी डायगोनल, डायगोनल वुड कम आल्सो इक्वल, ठीक है ना इसमें। एसी और बीडी देखो ना, एसी और बीडी दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। yes, so here you can say that AC and BD are coming equal. So AC and BD, right, are coming equal. So of course AC and BD are coming equal. So you can say this thing that what AC and BD are equal. So what does it mean? Yes, AC and BD are equal. ठीक है, तो area is something which is length into breadth over here. This is 3 into 5, that is 15 over here. AD is equal to square root of 5 का square plus 0 का square. 5 हो जाएगा and this is 15 हो गया, area is 15, this is 3, this is 5, this is 3। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या, अगर स्क्वायर होता है या तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अगर आपका रोम्बस होता तो उस केस में हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, अगर आपका पैरेललोग्राम होता तो बेस इंटू हाइट कर देते, कोई बात नहीं। तीसरा मेथड देख लो आप, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड ये होता है कि आपको चारों साइड्स दिए गए हैं, मीन्स कि आपका साइड्स दिया गया है, दिस इज ए बी सी एंड डी हो गया, ठीक है। तो ऑल द फोर साइड्स हैज बीन गिवन ओवर हियर। तो ए क्या हो जाएगा आपका -2, बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा -2, -(1), सी क्या हो जाएगा, सी सी इज 3, -(1), एंड डी इज समथिंग विच इज 3, 2। ठीक है जी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, बी की वैल्यू हो जाएगी -2, -(1), सी की वैल्यू हो जाएगी 3, -(1), डी की वैल्यू हो जाएगी 3, 2। ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से। तो बी डी और ए सी, राइट, तो बी डी और ए सी, ठीक है। तो बी डी और ए सी जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, राइट, तो बी डी ये हो जाएगा आपका, ठीक है, दिस इज ए सी ओवर हियर, दिस इज बी डी एंड दिस इज ए सी, राइट। एवरीबडी इज गेटिंग दिस और नॉट? देखोगे यहाँ पे दो ट्रायंगल में ऐसे डिवाइड कर दो, किसी भी दो ट्रायंगल में, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गया, कौन सा, ए बी सी। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट, ए बी सी ट्रायंगल में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो एडीसी जो है आपका निकालना है, ठीक है, एबीसी निकालना है और एडीसी निकालना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी और इन ट्रायंगल एडीसी हो गया, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। जल्दी करो फास्ट, एबीसी एंड एडीसी, ठीक है ना। तो दो ट्रायंगल्स को का एरिया निकाल के और दोनों का सम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज समथिंग, दो ट्रायंगल का एरिया निकाल कर दोनों का सम कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों का सम कर देने के बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स के एरिया आप फाइंड आउट करो, ये दोनों ट्रायंगल्स के, इस ट्रायंगल्स एबीसी एज वेल एज एडीसी, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को आप फाइंड आउट करके प्लस कर देंगे तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, दिस वुड बिकम एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, everybody got this concept or not? Just tell me fast, Govind and Bikash and everybody, right? Next, आ गया समझ में? किसी बच्चे को प्रॉब्लम, anybody have any problem in this? Just tell me fast. Right. Next लिखोगे, what is the area of the triangle?
तो what you have to write that what is the area of the triangle formed by the lines लिखोगे. Next question of this is third number question. What is the area of the triangle? What is the area of the triangle? Area of the triangle formed by the lines. Formed by the lines. What is the area of the triangle formed by the lines? ठीक है. What is the area of the triangle formed by the lines? You can say that is what is the area of the triangle formed by the lines? Y is minus of x is equal to 0. ठीक है. और उसके बाद कितना हो जाएगा? y plus x is equal to 0 and x is equal to c is and x is equal to c is. ठीक है ना. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? c/2. बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? c स्क्वायर. सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2c स्क्वायर. एंड डी हो जाएगा आपका c स्क्वायर बाई 2. ठीक है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस y minus of x is equal to 0, y plus x is equal to 0 and x is equal to c is c/2, c square, 2c square and c square by 2. Please. Right. Right. What is the area of the triangle formed by the lines y minus of x is equal to 0, y plus x is equal to 0. ठीक है ना. And x is equal to c over here. ठीक है. And x is equal to c. ठीक है ना. This is the point that you can say. And x is equal to c over here. ठीक है. Right. What is the area of the triangle formed by the lines y plus x is equal to 0, y minus x is equal to 0 and x is equal to c over here. ठीक है. This is the point that you can say. Right. So y minus of x is equal to 0. Right. So this is something which is a y minus of x is equal to 0. So this is a over here. Right. This is over here. That is b over here. ठीक है. That is over here. C is here. ठीक है. तो ये हो जाएगा y minus of x is equal to 0. ठीक है. This is y plus x is equal to 0 over here and this is x is equal to c over here. Right. तब बताओ y plus x is equal to 0, y minus of x is equal to 0 and x is equal to c over here. ठीक है ना. This is the point. तो y minus of x is equal to 0, y plus x is equal to 0 and x is equal to c. तो आप देखेंगे कि अब इनमें क्या करना है आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. राइट. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पे इसका और इसका और इसका. ठीक है ना. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का निकालना है. y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू c हो गया. ठीक है ना. तो दिस इज समथिंग y माइनस ऑफ c इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c. तो x इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू c हो गया. राइट ना. दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से. दिस इज c, c हो गया. राइट. And y minus of x is equal to 0, y plus x is equal to 0 over here. Right. तो y minus of x is equal to 0, y plus x is equal to 0. तो इन दोनों को समझोगे? Just listen to me carefully. y minus of x is equal to 0, y plus x is equal to 0. ठीक है.
तो दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c, x इज इक्वल टू c हो गया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, y माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, y माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हाट, दिस इज 2y राइट ना इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, तो y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी बच्चे को? नहीं है सर, ठीक है जी, है ना इजी। अब ये वाला पोर्शन निकाल लो आप, x इज इक्वल टू सी है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रख लो, इसमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट आएगा, बिकॉज यू नो दैट ना देयर आर थ्री लाइक ना लाइंस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू c हो गया, तो x इज इक्वल टू c आप यहाँ पे रख लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज समथिंग विच इज माइनस ऑफ c, तो x की वैल्यू अगर c हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस c इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ c, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज समथिंग विच यू कैन से दैट इज हाफ ऑफ, right, half of something which you can say that is how much, this is you can say that ना, right, 0 0, ठीक है ना, c c और c माइनस ऑफ c 1 1 1, तो किसी एक के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो आप, 2 0 है ही इसमें, कितना हो जाएगा आंसर, हाफ इंटू 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू, इसलिए कि ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो इस केस में आप क्या करेंगे 1, तो 1 होगा ही, इसलिए कि प्लस है, तो माइनस सी इंटू माइनस ऑफ सी, तो माइनस ऑफ सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस में, so this is something which is half into 2c square, this 2 and 2 will be cancel out, so c square is the answer, so this is something which is c square, कहाँ से c square by 2 आएगा, अच्छा c square माइनस ऑफ माइनस c square होगा ना, तो c square माइनस ऑफ माइनस तो प्लस c square, तो ठीक तो है, ये c square हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस तो प्लस c square, तो 2c square हो जाएगा, 2c square upon 2 that is c square आएगा इसका आंसर। What is the area formed by the like ना, what is the area of the triangle formed by the lines y minus of x is equal to 0, y plus x is equal to 0 and x is equal to c is which is something c square, okay, all right, which is something c square हो गया, राइट, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस देन यू कैन जस्ट टेल मी, आ गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देन, आ गया समझ में, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम लोग चलते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस भी हो गए हर एक वेराइटीज के, राइट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के इसको फिनिश करते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर, क्या अलाउ नहीं होगा, कहाँ पे, चलिए, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, सर्कम सेंटर, हम लोग चलते हैं सर्कम सेंटर, नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट दैट इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा इसको समझते हैं, राइट, सर्कम सेंटर क्या होता है, व्हाट इज सर्कम सेंटर, एवरीबॉडी जस्ट टेल मी, बाइसेक्टर सर, सर्कम सेंटर मीन्स सर्कल के अंदर ट्रायंगल, दिस इज सर्कम सर्कल ना, मीन्स सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो जाएगा, दिस इज ए दैट इज x1, y1, ठीक है, दिस इज b दैट इज x2, y2, दिस इज c दैट इज x3, y3 हो गया, ठीक है, तो a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखोगे यहाँ पे ए बी राइट, और ये आपका बी सी हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो क्या होगा, यस, इन तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, ए बी, ठीक है ना, बी सी एंड ए सी, ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है ना। ऐसे लिख लो सरकम सेंटर, ऐसे लिख लो ये सरकम सेंटर, it is the point of intersection it is the point of intersection of the perpendicular bisector, perpendicular bisectors of the triangle, ठीक है, it is the point of intersection of the perpendicular bisectors of the triangle, ठीक है। तो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से, तो ये हो जाएगा x और y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y, ये क्या हो जाएगा आपका, जस्ट टेल मी, दैट इज समथिंग x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, यही तो होगा ना x कोऑर्डिनेट, यही होगा या कुछ और होगा, बताइए। x1 x2 sin 2a होता है, सॉरी sin 2a, इसमें जो है ना आपका sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c हो जाएगा, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, दूसरा क्या हो जाएगा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन दिस इज sin of 2a प्लस sin of 2b प्लस sin of 2c हो गया, ठीक है ना। y1 sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 2c, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, राइट, जस्ट डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए, x1 sin 2a, ठीक है जी, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a sin 2b sin 2c, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा y1 sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 2c, ठीक है, अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है, राइट, ठीक है, कर लो इसको फास्ट, राइट, जल्दी इसको करो फास्ट, क्वेश्चन लिखोगे इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है ना। तो sin 2a sin 2b sin 2c, ये आपका हो जाएगा सर्कम सेंटर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो x1 क्या क्या बुक में नहीं, यही सर्कम सेंटर का ही फॉर्मूला होता है। अब ये है ना कि इस तरह से करने पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, sin 2a sin 2b sin 2c, ठीक है ना। क्या एक्स स्क्वायर का लेके वैसे भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, देखोगे सर्कम सेंटर निकालने के लिए ना ऐसे आप कर सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में हम आपको बताएंगे, एक्चुअल में केवल पॉइंट से ये पॉसिबल नहीं होगा इसको निकालना,
ठीक है, साइन 2 या साइन 2 भी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ए बी बी सी और ए सी ओवर हियर, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सिखाएंगे, तो आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन एनी ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कैसे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखोगे जैसे कि ए बी बी सी ए सी ये सब हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये जैसे कि इक्वेशन दी रहेगी लाइंस की, लाइंस इक्वेशन बना के फिर उसके परपेंडिकुलर जो है वो इसका स्लोप निकाल के, फिर उसके बाद इसके परपेंडिकुलर इस पे एक पॉइंट निकाल के मिड पॉइंट बना के, ऐसे करके बहुत काफी ज्यादा उसमें जो है ना ये हो जाता है। तो या ऐसा भी करते हैं हम लोग कि इसका रेडियस निकाल के, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के, पहले आप लिख लो इसको, राइट। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, समझ में आया, दिस इज द पॉइंट। दूसरा मेथड इसका ये है, देखोगे कि इसको आप क्या करेंगे, सरकम सेंटर को x, y मान लेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर में AC इज इक्वल टू C डैश मान लो, ठीक है, C डैश या Z मान लो, इसको C डैश ही मान लेते हैं, चलो C डैश। तो ये क्या हो जाता है एक्चुअल में, AC डैश इज इक्वल टू, यू कैन से दैट BC डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CC डैश हो गया। तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे ना दोनों साइड में, तो AC डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू BC डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू CC डैश का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें, तो करो इसको फास्ट। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, जस्ट फाइंड इट आउट, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, question is here that find the circumcenter of the triangle, find the circumcenter of the triangle, find the circumcenter of the triangle, right। ट्रायंगल के आपको सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने, whose vertices are, whose vertices are, whose vertices are something that is -2, -3, ठीक है ना, -1, 0 and 7, -6 हो गया, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, जस्ट फाइंड इट आउट, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, -3, -3, 4 दिया हुआ है। बी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3, -3, 5, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है -3, -3, 5 एंड डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज हो गया। क्या आंसर होगा बताइए, just do it fast. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are -2, -3, -1, 0 and 7, -6. Also find the radius of the circumcircle. Also find the radius of the circumcircle. Also find the radius of the circumcircle. Just find it out first. Also find the radius of the circumcircle. आंसर बताना है इसका आपको, you have to find out the answer of all these questions. रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस, कि आपका सर्कल हो गया, राइट, ये आपका हो गया ट्रायंगल इनसाइड दिस, ओके। तो फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ दैट दिस इज ए, दिस इज बी एंड हियर इज सी हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, -2, -3 सर। बी की वैल्यू कितनी दी गई है सर, -1, 0 सर। सी की वैल्यू कितनी दी गई है सर, 7, -6।
ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कम सर्कल का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप देखेंगे इसको मान लो P या कुछ अलग, ठीक है ना। तो P मान लिया तो आपने क्या लिखेंगे, P के कोऑर्डिनेट आपने मान लिया x, y, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP। इट मीन्स दैट AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर हो गया। तो AP का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, BP के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। अब फाइंड आउट कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस ऑफ -2, तो दिस इज समथिंग x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x माइनस ऑफ -1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लो जल्दी फास्ट, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा इसकी वैल्यू, ये देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 2 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4x माइनस ऑफ 2x, दिस इज 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 6y, ठीक है, प्लस 13 माइनस ऑफ 1 इज 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज x प्लस 3y, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पे। ये आ रहा है क्या, या कुछ गलत हो गया, देखो इतना ही आ रहा है ना। एक इक्वेशन यहां से आई, दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, दूसरी इक्वेशन कर लो। दूसरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर, PC का स्क्वायर, दिस थिंग आल्सो यू हैव टू डू। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर, जल्दी कीजिए फास्ट। कितना आ रहा है, दो इक्वेशन आएंगी और दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो you'll get the value of x and y from these two equations. Firstly you would solve these two equations and after that you will get the value of x and y in this, ठीक है ना, from that, right। जल्दी करो फास्ट, और x y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। आ गया समझ में, देखोगे AP स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर, तो दिस इज समथिंग विच इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस इज x माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर। तो दिस यू विल राइट दैट x माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर, तो दिस इज समथिंग विच इज x माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इससे क्या आ रहा है, इससे क्या वैल्यू आ रही है बताइए, what is the value that is coming from this, हाँ जी कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4, राइट, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। आफ्टर दिस यू हैव टू जस्ट सॉल्व दैट, ओके। तो 14 प्लस 4 दैट इज 18x और प्लस 6y ये कितना हो जाएगा 12, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 6y, ठीक है, प्लस 9 प्लस 4 13, तो 13 हो जाएगा, 13 माइनस ऑफ 49 माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा आंसर, कीजिए इसको फास्ट।
13 minus of 49 minus of 36 is equal to 0. आगे आंसर 3x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3x माइनस ऑफ y, तो सर 3x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। दिस इज द पॉइंट, दैट इज 3x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 12, राइट। ऑल राइट, एनी डाउट इन दिस? कोई प्रॉब्लम इसमें तो बताइए। If you have any problem in this, then you can just tell me first. प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट इन सेंटर, I'm just coming to the next portion, that is in center over here. इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है उसको समझते हैं। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज समथिंग ए बी सी ओवर हियर, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी ओवर हियर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं इन सेंटर। तो इन सेंटर में आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे देखो ये आपका इंटरनल एंगल है, दिस इज ए, ठीक है ना। तो ए एंगल का आपका क्या हो जाएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर हियर, ठीक है। दिस एंड दिस आर इक्वल। बी का भी आपका ये हो जाएगा, राइट। तो बी का भी यहाँ पे इस तरह से, तो बी में दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद सी में हो जाएगा आपका ये एक्स हो गया, एक्स हो गया, ये दिस, एंड यहाँ पे सी वाला हो जाएगा ये, ठीक है, दिस। ये परपेंडिकुलर जो है ना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इन सेंटर इज, जस्ट राइट इट डाउन दैट इन सेंटर इज what is it, it is the point of intersection of, it is the point of intersection of, is point of intersection of the internal angle bisector angle bisectors of the triangle। ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है। तो दिस इज ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बी का और सी का जहाँ पे मिलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज आई एंड दिस इज कॉल्ड एज इन सेंटर ओवर हियर। दिस इज समथिंग व्हिच इज आई एंड दिस इज इन सेंटर ओवर हियर। तो आई, दिस इज इन सेंटर, लिख लो आप फर्स्ट। So coordinates of in center is what? Coordinates of in center. This is coordinates of in centers. That is I. I is equal to क्या हो जाएगा बताओ। तो I is equal to क्या हो जाएगा, तो देखोगे ये आपका A के कोऑर्डिनेट आप मान लो x1, y1 दिया हुआ है, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, y2 दिया हुआ है। C के कोऑर्डिनेट हैज बीन गिवन, दैट इज x3, y3, okay। You can say that the side which is opposite to A is something which is small a. I have discussed this thing to you. This is a small a over here. Okay. The side which is opposite to B is a small b, and the side which is opposite to C is, this is a small c over here. So this is A, B, and C.
The sides which are opposite to A is angle A is a small a, the side opposite to angle B is a small b, and the side which is opposite to angle C is a small c. Okay, so this thing I have discussed already with all of you. So this is something which is A into x1 sir, A into x1 sir plus B into x2 plus C into x3 upon what we will write, this is A plus B plus C. This is the x coordinate of this in center. This is the x coordinate of in center. What is y coordinate? Y coordinate is ay1 sir plus by2, okay, and plus cy3 upon this is a plus b plus c. This is something which you can say is, sir, this is y over here, right? This is y over here, this is x, this is y. Okay, coordinates of in center is I, and this is x, and this is y over x1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c. So this is something which is the coordinates of in center. This is something which is the coordinates of in center over here. Okay, where A, B, C are the sides, the small sides of triangle ABC. Okay, so you can say here that A, B, C are the A, B, and C are the what? Sides of triangle ABC. ट्रायंगल एबीसी के क्या हो जाएंगे? साइड्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी. लिखोगे क्वेश्चन. Just write down the question is the angle, the incenter of the triangle formed by the incenter of the triangle formed by 0, 0, 5, 12 and 16, 12 is, right? A is what? This is 7, 9. B is, that is 9, 7, and C is, that is minus 9, 7, and D is what? Something, this is minus 7, 9. बताइए in center. The in center of the triangle found by 0, 0, 5, 12 and 16, 12 is 7, 9, 9, 7, minus 9, 7, and minus of 7, 9. What is the answer of this question? Just write it down fast. हाँ, 16, 12 है. Most probably coordinate हो जाएंगे the in center of the triangle, right ना, formed by 0, 0, 5, 12, 16, 12 is 7, 9, minus of 9, 7, 9, 7, minus of 7, 9. क्या हो जाएगा in center? Just tell me fast. Right, in center of the triangle formed by 0, 0, 5, 12 and 16, 12 is. Just tell me fast. What is the answer of this question? देखोगे इसका ट्रायंगल का इन सेंटर, तो ये क्या दिया हुआ है? इन सेंटर आपको चाहिए. A is 0, 0, ठीक है ना. B is something which is 5, 12, ठीक है. C is something which is 16, 12 हो गए, ठीक है ना. This is the point that you can say, right? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा बताओ. ए के सामने वाला क्या होगा? ए के सामने वाला जस्ट टेल में 16 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर मतलब 12 का होल स्क्वायर, दैट इज 144. BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 12 माइनस ऑफ 12 इज 0. दिस इज समथिंग विच इज 12 यूनिट. ठीक है, ए बी इज व्हाट? दिस इज 5 माइनस ऑफ 12, तो दिस इज 13 यूनिट. तो ये मतलब ऐसे आप कर सकते हैं ना, ए राइट बी, तो ये आपका हो जाएगा ए, दैट इज बी सी, एंड दिस इज सी ओवर हियर, एंड बी इज व्हाट? दिस इज 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 256 और प्लस 144, तो दिस इज कमिंग टू 400. 400 is something which is 20.
ठीक है, तो 20, तो एक आपका हो जाएगा, ए आया आपका कितना, इसको मान लो x1 y1, so this is x1, this is y1 over here, this is x2, right, and here is y2 over here, and this is x3 and y3. Just consider this all. ठीक है, तो x3 y3, just consider this all. Okay, all right. ये प्रॉब्लम इसमें किसी बच्चे को, if you have any problem then just tell me fast. 7,9. Okay, all right. 7,9. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्स सेंटर पे और ऑर्थो सेंटर पे। तो पहले सबसे समझते हैं एक्स सेंटर। तो राइट नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द एक्स सेंटर ओवर हियर। Right, x center. So I am coming to the next portion, that is x center over here. Okay, so I am just coming to the next portion, that is x center. x center क्या होगा उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो x center में जैसे देखोगे, दिस इज अ ट्रायंगल over here. This is triangle ABC. This is A, B and C over here. तो ABC से ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो ABC क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया कि इसके एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को, राइट, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को आपने क्या किया कि इसको बढ़ा दिया, राइट। तो जस्ट इंक्रीज ऑल दैट। तो आपने क्या किया कि इसके बी साइड को एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो बी साइड को एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर दिया, सी को भी एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज द पोर्शन दैट यू कैन सी दैट सी को भी आपने एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो अब आपका ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज दिस, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए इज दिस ओवर हियर। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस ओवर हियर, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इज क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखो, दिस इज द पॉइंट, यू कैन से दैट। अब देखो बी को एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, सी को एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, राइट। और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा I1, दिस इज समथिंग विच इज I1 ओवर हियर, दिस इज समथिंग विच इज I2 ओवर हियर, राइट ना। ये कितना हो जाएगा आपका I2, दिस इज समथिंग विच इज I2, राइट। यहाँ पे देखोगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, राइट। इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका I3। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज समथिंग विच इज I3 ओवर हियर, हो जाएगा I3, राइट। तो दिस इज I3। तो I1, I2 एंड I3 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरह का तो बताओ। तो I1, I2 एंड I3, राइट। तो I1, I2 एंड I3 हो गया। तो I1 क्या हो जाएगा बताओ। I1 इज समथिंग विच इज माइनस ऑफ, तो I1 x, y इज हाउ मच, I1 इज x, y। I1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज x, y is how much, this is minus of ax1 plus bx2 plus cx3 upon minus of a plus b plus c, ठीक है, minus of ay1 plus by2 plus cy3 upon minus of a plus b plus c, minus of ay1 plus by2 plus cy3 upon minus of a plus b plus c। दिस इज फर्स्ट आई सेंटर जिसको बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा x1, y1, इसको लिख लो इसके साइड्स को। b हो जाएगा आपका x2, y2 एंड c इज समथिंग विच इज x3, y3। तो a क्या हो जाएगा, a ये वाला साइड होगा, दिस इज द साइड विच इज अपोजिट टू एंगल a, b इज समथिंग विच इज अपोजिट टू साइड लाइक एंगल b एंड c इज समथिंग विच इज अपोजिट टू द साइड एंगल c हो गया। दिस इज योर पोर्शन, ओके। What is I2? तो I2 is something which is sir xy over here, right?
y2 is xy, i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, just do it, ax1 minus of bx2 plus cx3 upon a minus of b plus c. Next is what, a y1 minus of by2 plus cy3 upon a minus of b plus c हो गया. ठीक है, i3 क्या हो जाएगा, what is i3, i3 is something which is x comma y. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ax1 plus bx2 minus of cx3 अपॉन a प्लस b माइनस ऑफ c, ये क्या हो जाएगा, ay1 प्लस by2 माइनस ऑफ cy3 अपॉन a प्लस b माइनस ऑफ c. जल्दी कर लो इसको फास्ट, जस्ट डू इट फास्ट as soon as possible. लिख लिया आप लोगों ने, आ गया समझ में, तो i1 i2 and i3, right, you have understood this or not, i1 i2 and i3, okay. So this is something minus of ax1 plus bx2 plus cx3 upon minus of a plus b plus c minus of ay1 plus by2 plus cy3 upon minus of a plus b plus c. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax1 minus of bx2 plus cx3 upon a minus of b plus c, ay1 minus of by2 plus cy3 upon a minus of b plus c हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर. ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा एक्स सेंटर, और ये जो सर्कल होगा इसको क्या बोलेंगे, दिस ऑल आर द सर्कल्स विच आर नोन एज एक्स सर्कल्स. ठीक है, तो इन सभी सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं, दिस आर द सर्कल्स विच आर नोन एज एक्स सर्कल्स. दिस आर नोन एज एक्स सर्कल्स हो गया. ठीक है, जिसको हम लोग एक्स सर्कल्स बोलते हैं. जल्दी कर लो आप लोग फास्ट.
This is called as x circles. ठीक है, I'm just coming to the next portion of this. No, एक लास्ट पोर्शन है ना, उसको कर लो ऑर्थो सेंटर, उसके बाद साइंस करेंगे. ठीक है जी, देखोगे तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर. तो जस्ट राइट इट डाउन, ऑर्थो सेंटर. आ गया समझ में ना, I1 I2 I3. हम लोग नेक्स्ट पोर्शन आते हैं ऑर्थो सेंटर की तरफ. ऑर्थो सेंटर इज व्हाट, जस्ट टेल मी व्हाट इज ऑर्थो, व्हाट आर ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, कोई बता सकता है. ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. जैसे आपका ये आपका ट्रायंगल हो गया, दिस इज अ ट्रायंगल ओवर हियर. ठीक है, तो ABC इज व्हाट, समथिंग अ ट्रायंगल. राइट, ए आपका हो जाएगा x1 y1, बी हो जाएगा x2 y2, एंड सी हो जाएगा आपका x3 y3 हो गया. देयर आर 3 पॉइंट्स over here, तो x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 over here. ठीक है ना. अब क्या करेंगे, ए के सामने वाला जो साइड्स होगा दैट इज अ स्मॉल ए, राइट. बी के सामने वाला जो साइड होगा दैट इज अ स्मॉल बी, एंड सी के जो सामने वाला साइड होगा दैट इज स्मॉल सी हो गया. ठीक है, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. तो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी हो गया. ठीक है, तो अब देखो कि ऑर्थो सेंटर मीन्स क्या. यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, यहां से भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तो परपेंडिकुलर का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर इज समथिंग विच यू कैन से दैट इज, it is the point of intersection, it is the point of intersection of, point of intersection of the altitudes of a triangle, point of intersection of the altitudes of a triangle. ठीक है, तो ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा O, दैट इज x, y इज व्हाट, this is something which is x1 tan A plus x2 tan B plus x3 tan C upon tan A plus tan B plus tan C. ये क्या हो जाएगा आपका x1, सॉरी y1, y1 tan A plus y2 tan B plus y3 tan C upon tan A plus tan B plus tan C. इसको लिख लो जल्दी से फास्ट, जस्ट राइट इट डाउन फास्ट. ठीक है, तब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैथ्स के पोर्शन. ठीक है ना, जल्दी कर लो फास्ट. Just do it fast. Yes. Okay.